जी। Last time we have discussed about selling concept. Today we are going to discuss about the marketing concept. This is the best concept because product concept, production concept, and selling concepts are also applicable, but contemporary the model for marketing concept is the new concept which hold that achieving organization goal depend on knowing the need and want of a target market and delivering the desired satisfaction better than competitor do. Means you try to. So the marketing concept hold that achieving the organization goal, if you want to achieve the goal and objective of an organization, you have to consider something that is the basic requirement, that you have to understand the need and want of your consumer or customer or the patient. Depending on the knowing the needs and want of the target market and delivering the desired satisfaction better than competitors do. Under the marketing concepts, consumer focus and value are the path to sale and profit. Instead of product centered make and sell philosophy, the marketing concept is a customer centered. Means marketing concept is a customer centered, not a product centered. Means not emphasize focus on the product, focus on the customer. Sense and response philosophy. The job is not to find the right customer. So marketing concept we were discussing about, which is consist of a product centered, not a sorry, a customer centered, not the product centered. This you have to emphasize more on your cus- customer, not on your product. So the last time what we have learned selling concept is just selling, more advertisement and more sell. But here marketing concept means you have to consider the need, wanted, demand of your customer. Under the marketing concept, customer focus and value are the path to sales and profit. We earn profit by focusing on a customer need and want. Instead, the product center make and sell philosophy. The marketing concept is a consumer centered sense and response philosophy. Means there are two philosophies. One is only considered the product
make the product and sell the product. That is the concept. But in marketing concept, we focus on our customer. What is the need and want of customer? The job is not to find the right customer for your product, but to find the right product for your customer. Means you are not in search of a to find the right customer and give your product to that customer, but you have to make the right product and give it to the customer. Means you make that product which really customer required. But rather than it. Oh, mental हो जाओ यहाँ से पागल दिमाग खराब दूसरा The job is not to find the right customer for your product, but to find the right product for your customer. Then there is a fifth concept. First was the product concept, second was the production concept, third was the selling concept, and fourth was the marketing concept. Now we have got a fifth concept, that is a societal marketing concept. This is different with all four concepts. The societal marketing concept questions whether the pure marketing concept overlook possible conflict between the consumer short-run wants and consumer long-run welfare. Means, of course, you fulfill the requirement of a customer, his needs and want and demand. But what about the welfare of a customer? Are you doing something for your customer, welfare things for your customer or not? Is a firm that satisfies the immediate need and want of a target market always doing what best for its consumer in the long run? The societal marketing concept holds that marketing strategy should deliver value to customer in a way that maintain or improve both the consumer and a society well-being. So this is very important. We have to consider the welfare in long term welfare of the society. We call for substantial marketing, socially and environmentally responsible marketing that meets the present need of consumer and a business while also preserving or enhancing the ability of future generation to meet their need. Even more broadly, many leading business and marketing thinkers are now preaching the concept of shared values which recognize the societal needs, not just economical need or defined market. The concept of shared value focuses on creating economical value in a way that also creates value for society. A growing number of companies known for their hard, hardness approach to business, such as the GE, General Electric, Dow Chemicals, Google's IBM, Intel, Johnson& and Johnson, Nestle, Unilever, Walmart, are rethinking the interaction between the society and the corporate performance. They are concerned not just with short-term and economic gain, but with the well-being of their customers. The depletion of the natural resources vital to the business, the availability of the key suppliers, and the economical well-being of communities in which they operate. So we have discussed five concepts: production concept, product concept, selling concept, marketing concept, and societal marketing concept. Now you have to select while you are making your strategies that which concept fit in your strategy. Because it's not necessary to follow only one concept. You can use a mixed concept or you can use one isolated concept. But it all depends on your strategies. What do you want? What type of business do you perform? If you have got a product concept means you just try to improve the quality of your product every time.
Your focus is not on advertisement, selling concept, not manufacturing Excuse me, sir. product, not on. सर स्टूडेंट है ना, वेट कर रहे हैं, उनको अलाउ कर दें। और आपकी स्क्रीन भी शो नहीं हो रही। स्क्रीन शॉट नहीं आ रही है? नहीं सर। मैंने तो शेयर किया हुआ था, एक मिनट में देखता हूँ। अभी आ रही है? अब आ गई स्क्रीन? आपको दिख रही है स्क्रीन? जी सर। अच्छा, 11 लोग अब आए एकदम। अच्छा, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसको मैं एक दफ़ा रिवाइज कर दूं कि मैंने आपको 5 कॉन्सेप्ट्स आज, दो कॉन्सेप्ट आज पढ़ाए, 3 कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाए थे। मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट जो फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी मैंने आपको बताई थी। इन फिलॉसफी में सबसे पहले पांच कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए थे। 5 कॉन्सेप्ट में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था वो था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, फिर पढ़ाया था सेलिंग कॉन्सेप्ट, फिर आज पढ़ाया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोसाइटल कॉन्सेप्ट। इसका पर्पस समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये फिलॉसफी है, दरअसल फलसफा है। हर एक अपना फलसफा है, ठीक है। एक घर का फलसफा है कि हम अपनी इनकम में बच्चों को तालीम पे पैसा खर्च करें, या अपनी इनकम से बच्चों के एंटरटेनमेंट में पैसा खर्च करें, या अपनी इनकम से हम अपनी फैमिली के लिए हेल्थ के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करें, या हम फूड पे ज़्यादा एम्फेसिस करें। ये डिपेंड करता है, हर घर की एक फ़लसफ़ा होता है। ऐसे एक मार्केटिंग का फ़िलॉसफ़ी है कॉन्सेप्ट की, कि आप ये कॉन्सेप्ट में प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब है आप जितना बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, उतनी प्रोडक्ट बिकेगी। आपका फ़िलॉसफ़ी है यार। हकीकत भी होता भी है ऐसा मार्केट में कुछ बिजनेस में, ठीक है ना। जैसे कोरंगी के अंदर चप्पलें बनती हैं, 150 रुपये, 200 रुपये की, 250 रुपये की जो लेडीज चप्पलें होती हैं, जो 2 कदम चल के टूट जाती हैं, वो आप देखें मार्केट में अवेलेबल है। वो कहते हैं बस बनाए जाओ, फेंके जाओ मार्केट में, बनाए कुछ तो बिकेगा, प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं वो। मगर उसी से आगे केडिया मार्केट गुलशन अवाल में थोड़ा सा आगे जाएंगे तो दूसरी चप्पल की दुकान है जिसका नाम है कदम। उसकी चप्पलें शुरू होती हैं 1200 रुपये से और जाती हैं 12,000 तक। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? फोकस ऑन प्रोडक्ट, नॉट द प्रोडक्शन। कि प्रोडक्ट अच्छी बनाओ, ठीक है, वो प्रोडक्ट अच्छी बना रहा है। तीसरा कॉन्सेप्ट है सेलिंग। एडवर्टाइजमेंट किए जाओ, किए जाओ, किए जाओ, किए जाओ, कोई ना कोई खरीदेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खरीदेगा जरूर, ठीक है। तो हम अपने फलसफे पे अपना बिजनेस करते हैं, अपने फलसफे पे अपना बिजनेस करते हैं, हमारी फिलॉसफी क्या है। फिर एक और चीज़ आती है जब हम उसके बाद जाते हैं सेलिंग के ऊपर कि खूब एडवर्टाइजमेंट करो, खूब बिकेगा। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है, इसमें नफी नहीं है। दिस कॉन्सेप्ट इज acceptable concept, but there are certain conditions. फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है नहीं जी, पहले तो हम कस्टमर की नीड वांट पता करो, उसके बाद अपना प्रोडक्ट बनाओ। पहले प्रोडक्ट ना बनाओ, ना बेचो, पहले नीड वांट एंड डिमांड मालूम करो कस्टमर की या पेशेंट की, जिसकी भी आप, जिसको आप कस्टमर समझते हैं, कंज्यूमर समझते हैं, और उसके बाद आप उसको बिजनेस करें। मगर पांचवा जो है वो इससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट है, दैट इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यानी आप जो भी करें सोसाइटी को, किसी भी चारों कॉन्सेप्ट से आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करें सोसाइटी को या हॉस्पिटल को, जो हॉस्पिटल भी एक सोसाइटी है, यानी जहाँ पे पेशेंट होते हैं आपके, ठीक है। तो वो कहता है कि आप शॉर्ट रन में तो उनकी नीड वांटेड डिमांड फुलफिल करें, मगर लॉन्ग रन में
वेलफेयर होना ज़रूरी है। What do you understand by that? It's a very, very specific concept. लॉन्ग रन में अगर पेशेंट का वेलफेयर ना हो, मीन्स इफ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड अ treatment in a hospital to a patient in long term, if you are not giving a subsidiary or certain discounts, as well as you are not providing some welfare, means giving some benefits to the patient in your hospital, it means this is not a societal marketing concept. क्योंकि आप अपनी प्रोडक्ट तो बेच रहे हैं, आप उसको अपना हॉस्पिटल दे रहे हैं, अपनी दवाएं दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, मगर क्या पेशेंट के वेलफेयर का भी आप ख्याल रख रहे हैं कि पेशेंट अब अफोर्डेबल नहीं रहा, इतना इलाज उसने करा लिया, इतने पैसे खर्च कर दिए, अब आपके पास ऐसे फंड्स होने चाहिए जिसके थ्रू पेशेंट को गए अब आगे आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है. Is a firm that satisfy the immediate need and want of a customer market also doing what best for its consumer in the long run. ठीक है, तो मैंने 5 कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर करके बता दिए हैं. अब हम आते हैं एक और टॉपिक की तरफ, प्रोडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन. अब आप अपने प्रोडक्ट और ब्रांड को, प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजमेंट कैसे मैनेज करेंगे. Companies producing a variety of product and brand often establish a product or a brand management organization. अब आप ले लीजिए जीएसके को, ले लीजिए जीएसके के पास 250-300 दवाएं हैं, छोटी छोटी कंपनी, एसएनजी फजलाई ले लीजिए, एप्ला ले लीजिए, एमसेस ले लीजिए, हाइनून ले लीजिए, सर ले लीजिए, फाइजर ले लीजिए, एबर्ट ले लीजिए, सबके पास बहुत सारी प्रोडक्ट हैं. इनको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे. द प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट रिप्लेस द फंक्शनल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन बट रादर सर्व एज अनदर लेयर ऑफ द मैनेजमेंट. यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है प्रोडक्ट मैनेजमेंट जैसे फंक्शनल मैनेजमेंट है. अ प्रोडक्ट मैनेजर सुपरवाइजेस प्रोडक्ट कैटेगरी मैनेजर हु इन टर्न सुपरवाइज स्पेसिफिक प्रोडक्ट और ब्रांड. एक मैनेजर को कुछ प्रोडक्ट दे दी जाती है जिसको सुपरवाइज करता है. A product management organization makes sense. The company's products are quite different, or if the sheer number of the product is beyond the ability of functional marketing organization to handle. यानी बहुत सारी प्रोडक्ट हैं और इन तमाम प्रोडक्ट को अगर हम ग्रुप में डिवाइड कर लें, नंबर्स में डिवाइड कर लें, तो इसका मैनेज करना आसान होगा. क्राफ्ट यूजेज द प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स पोस्ट डिवीजन. यानी अब डिवाइड कर दीजिए प्रोडक्ट को. सेपरेटिंग प्रोडक्ट कैटेगरी, आप कैटेगरी अलग कर दे, जैसा आपके पास कैटेगरी है, एंटीबायोटिक आपने अलग कर दी, एंटी डायरियल आपने अलग कर दी, एंटी एस्थेमेटिक अलग कर दी, कार्डियक अलग कर दी, डायबिटिक्स अलग कर दी, ठीक है ना, विटामिन अलग कर दी, हार्मोन्स अलग कर दिए, तो इमरजेंसी की जो ड्रग्स है वो अलग कर दी आपने उसको कैटेगराइज कर दिया. विद इन द सीरियल प्रोडक्ट्स ग्रुप देयर आर सेपरेट सब कैटेगरी मैनेजर फॉर. सीरियल की एक एग्जांपल दे रहा है ये, न्यूट्रिशनल के सीरियल, चाइल्ड प्रेस वीकेंड सीरियल, फैमिली सीरियल एंड मिसलेनियस सीरियल. ये एग्जांपल उसने अपनी दी, हमारे पास एग्जांपल हमारी दवाओं की है. वी हैव गॉट अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ द प्रोडक्ट और द ड्रग्स. प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजर हैज दीज टास्क. एक प्रोडक्ट मैनेजर या ब्रांड मैनेजर जो प्रोडक्ट के ऊपर बिठा दिया जाता है एज अ मैनेजर टू मैनेज द थिंग्स, डेवलप लॉन्ग रेंज एंड कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी फॉर द प्रोडक्ट. वो अपनी प्रोडक्ट के लिए एक लंबी स्ट्रेटेजी बनाता है. कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी यानी बेहतर स्ट्रेटेजी. कॉम्पिटेटिव का मतलब है बेहतर, कॉम्पिटिशन नहीं है. कॉम्पिटेटिव मीन्स दूसरे से बेहतर. प्रिपेयरिंग एन एनुअल मार्केटिंग प्लान एंड सेल्स फोरकास्ट. फिर वह एक पूरे साल का प्लान बनाता है और प्लान बनाने के बाद फोरकास्टिंग भी बनाता है. व्हाट इज फोरकास्टिंग? फोरकास्टिंग इज ऑल्सो एन एस्टिमेट. वी ऑल्सो कॉल्ड इट एस्टिमेट. फोरकास्टिंग मीन्स व्हाट वी आर गोइंग टू सेल इन द फ्यूचर. फ्यूचर में हम क्या बेचेंगे, कितना बेचेंगे, कितने यूनिट बेचेंगे, उसको हम कहते हैं फोरकास्टिंग. हेलो, अच्छा. So working with advantage and merchandising agents to develop copy, program and campaign. ये campaign चलाते हैं बाकायदा.
Stimulate support of the product among the sales force and the distributors. ये सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट अमंग सेल्स फोर्स जो होती है, यानी जैसे एक प्रोडक्ट मैनेजर है वो मैनेजमेंट करता है, उसका काम सेल्स फोर्स से नहीं है, बट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल्स फोर्स है। हेलो 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 तो स्टिमुलेटिंग सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट अमॉन्ग द सेल्स फोर्स, जो सेल्स फोर्स है आपकी, जैसे मेरे पास 900 की सेल्स फोर्स थी जिसके ऊपर 48 मैंने मैनेजर्स बिठाए हुए थे, और वो क्या करते थे, मैनेजर इन सेल्स फोर्स को सपोर्ट करते थे, जहाँ उनको मुश्किलात पेश आती थी उनके काम आते थे। इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूटर थे मेरे पास 48, वो पूरे पाकिस्तान में, ठट्टा में भी एक मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर था, एक वो हिंदू डिस्ट्रीब्यूटर था, वो वहाँ पे था, उसके पास हम जाते थे। मद्रास वाला हैदराबाद में था। इस तरीके से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, फार्मा लिंक हमारे कराची में था। तो इस तरीके से काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, 48 डिस्ट्रीब्यूटर। उसके साथ भी हम जाके सपोर्ट स्टिमुलेट करते हैं या सपोर्ट करते हैं उनको अपने बिजनेस के लिए। गैदरिंग कंटिन्यूस इंटेलिजेंस, गैदरिंग कंटिन्यूस इंटेलिजेंस ऑन प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। अब हमारी जो मार्केट में प्रोडक्ट मौजूद है, जो दवाएं हमारी मार्केट में मौजूद हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट हमारी ज़्यादा बिक रही है। ऑगमेंटिन ज़्यादा बिक रही है, या सफेक्सेन ज़्यादा बिक रही है, या कोई और एंटीबायोटिक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नोविडेट ज़्यादा बिक रही है, कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रही है मार्केट के अंदर। तो वी गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट थ्रू अवर इंटेलिजेंस। कस्टमर एंड डीलर एटीट्यूड्स भी देखते हैं कि कस्टमर हमारा क्या एटीट्यूड है और डीलर का क्या है। एंड न्यू प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटीज, मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट के साथ क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम आ रहा है, और मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। इनिशिएटिंग प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टू मीट चेंजिंग मार्केट नीड्स। अब आपकी मार्केट नीड को देखते हुए यू हैव टू चेंज द मीन्स इम्प्रूवमेंट चेंज, इम्प्रूवमेंट टू मीट चेंजेस मार्केट नीड। अब मार्केट नीड बदल गई। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आज वोल्ट्रॉल जो है, डाइक्लोफेनिक सोडियम, ये नॉर्मल फिल्म कोटिंग पे आती थी, इससे अल्सर की रिपोर्ट हुई तो क्या क्या उसे एंटेरिक कोटिंग पे कन्वर्ट कर दिया गया। पहले जो है कैल्शियम और विटामिन सी टैबलेट की शक्ल में आती थी, अब वो डिसइंटीग्रेटेड शक्ल में आती है, जिसे हम कहते हैं CSC। वो पानी में डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टूट जाती है बहुत जल्दी। तो कस्टमर की क्या नीड है, उस हिसाब से हमने प्रोडक्ट बनाई है। कहीं हमने टैबलेट का साइज़ बढ़ाया है, कहीं हमने टैबलेट का साइज़ कम किया है। कस्टमर कहता है मुझे जो पत्ता मिले वो डिस्प्रिन के पत्ते की तरह वो पत्ता ना हो, वो जो हो स्ट्रिप, वो हमारी एलो पैकिंग में हो, जैसे समंदर की लहरें बहती हैं। तो आप गेट्स फार्मा की प्रोडक्ट उठा लें और दूसरी मल्टीनेशनल्स की उठा लें, तो लोकल है, आपको ये मिलेगा एलो की पैकिंग। जो पहले क्रिस्टल पैकिंग आती थी, ठीक है ना, एल्युमिनियम फॉइल की स्ट्रिप्स आती थी, अब वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो रही है। तो कस्टमर की जो चेंजिंग मार्केट नीड्स है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, फॉर एग्जांपल ब्रूफिन है, ब्रूफिन के टैबलेट्स आती थी, अब फील किया गया कि नहीं, इसकी और भी मार्केट चेंज हो रही है, दे नीड अ बेस्ट गुड एंटीपायरेटिक, तो ब्रूफिन का उन्होंने सिरप बना दिया। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें चेंज कर देते हैं। These tasks are common to both consumer and industrial product manager. However, consumer product manager typically, we are talking about the manager who will manage the whole business, typically manage fewer product, कुछ product उसके पास होती है, and spend more time on advertising and sales promotion. तो ये मैनेजर क्या करता है, ज़्यादातर टाइम अपना एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन में लगाता है। दे आर ऑफन यंगर एंड MBA एजुकेटेड, ज़्यादातर इसमें MBA लेते हैं, ठीक है ना। मगर बहुत सारे फार्मासिस्ट इस वक्त मेरे दोस्त हैं जो बड़ी बड़ी पोजीशनों में
प्रोडक्ट मैनेजर ब्रांड मैनेजर से चले गए। मैं खुद भी ब्रांड मैनेजर रह चुका हूँ। MBA होना ज़रूरी नहीं था मगर आजकल ज़रूरी है, ना भी हो तो चल जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मैनेजर स्पेंड मोर टाइम विद कस्टमर इन लेबोरेटरी एंड इंजीनियर्स पर्सनल्स। जो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बेचता है वो ज़्यादातर किसके साथ होता है? वो इंजीनियर्स के साथ होता है फार्मा प्रोडक्ट्स। लेबोरेटरी के साथ होता है। आप HPLC बेचने जाते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोम बेचने जाते हैं, माइक्रोस्कोप बेचने जाते हैं, PCR बेचने जाते हैं, ये सब के सब जब आप बेचने जाते हैं तो आप किसके साथ होते हैं? वहाँ के जो इंजीनियर्स होते हैं लेबोरेटरी के, ठीक है ना, उनके साथ आप होते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं उस मशीनों का। एक्सेलाकोटा मशीन है, लेफोलाइजर है, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसी मशीनें आ गई हैं आजकल। द प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज इंट्रोड्यूस इन सेवरल एडवांटेजेस। एक प्रोडक्ट मैनेजर ऊपर होगा तो वो बहुत सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करेगा। द प्रोडक्ट मैनेजर कैन कंसंट्रेट ऑन डेवलपिंग अ कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स फॉर द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट मैनेजर होगा या ब्रांड मैनेजर होगा वो क्या करेगा कि कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग करेगा, जिसमें वो जो मार्केटिंग मिक्स बनाएगा वो अच्छे बनाएगा। व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स? प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है, प्लेस है, पीपल है, प्रोसेस है एंड फिजिकल एविडेंस। 7P जो मैंने आपको पढ़ाए थे, 7P है इसके अंदर। इसको मैनेज करेगा कॉस्ट इफेक्टिव। प्रोडक्ट मैनेजर कैन रिएक्ट मोर क्विकली टू प्रॉब्लम इन द मार्केट देन अ कमिटी ऑफ फंक्शनल स्पेशलिस्ट कैन। प्रोडक्ट मैनेजर जो होगा वो जो भी मार्केट में प्रॉब्लम्स आएंगे उसको बेहतर तरीके से हैंडल करेगा, बिकॉज दे हैव अ प्रोडक्ट एडवोकेट, वो प्रोडक्ट को जानते हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट also is an excellent training ground for young executives because it involves them in almost every area of the company operation. But a product management organization has some disadvantages. First, product manager creates some conflict and frustration. Typically, product managers are not given enough authority to carry out their responsibility effectively. क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर जो है ये सैंडविच है इन बिटवीन द सेल्स एंड द मैनेजमेंट, तो इसलिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड होता है, सप्रेस होता है, अथॉरिटेटिव नहीं होता। ये मैनेजमेंट के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ये कुछ मैनेजमेंट के ड्रॉबैक्स हैं। तो हमें एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों देखने होते हैं। दे आर टोल्ड दे आर मिनी प्रेसिडेंट बट आर ऑफन ट्रीटेड एज लो लेवल coordinators. They are burdened with a great amount of paperwork. They often have to go over the head of others to get something done. कुछ काम करने के लिए उसको दूसरों के पास जाना पड़ता है और वहाँ से उसको मदद लेनी पड़ती है, और वहाँ से मदद लेके जो है वो आपको बताता है कि वो उनसे हेल्प लेके अपना काम कंप्लीट करता है। Second, product manager become expert in their product but rarely achieve functional expertise. एक्सपर्ट तो हो जाता है मगर जो फंक्शनल एक्सपर्टीज है उसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जरूरत है। दे वैसिलेट बिटवीन द पोजिंग एज एक्सपर्ट एंड बीइंग काउड बाय रियल एक्सपर्ट्स। शो करता है वो एक्सपर्ट है मगर जब एक्सपर्ट उसके सामने आते हैं तो उनके सामने काउ बन जाता है वो। मतलब हम लोगों ने बहुत अरसे तक अपनी मेहनत करते 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 हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और उसकी वजह से हमें जो एडवांटेज मिला है वो ये है कि 27 साल का हमारा तजुर्बा है, जिसकी वजह से हम कुछ गेन करके उन एक्सपर्ट्स के करीब पहुँचे हैं। मगर उसके साथ साथ हमने अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए सिर्फ प्रोमिसेस रहते हुए जब मैंने काम किया तो वो मेरी एक्सपर्टीज नहीं थी। When I have entered in a pharmaceutical company, in that when I worked as a brand manager or a product manager, तो जितने भी साथ मेरे दोस्त होते थे जो कोई अमेरिका बरतानिया MBA करके आए थे, वो लोग सबक ले जाते थे। Then I have to decide to go for further education along with this job. तो मैंने जॉब के साथ फिर MBA किया, NPA किया, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया, फिर मैं इंग्लैंड जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करके आया मार्केटिंग के अंदर। इतना करने के बाद देन आई फील दैट आई एम एन एक्सपर्ट।
तो एक्सपर्ट बनने के लिए जो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है वो ज़रूरी है, मगर प्रोडक्ट मैनेजर ज़्यादातर जो फार्मा में आते हैं वो बी फॉर्म या डी फॉर्म करके अंदर आ जाते हैं फार्मा इंडस्ट्री में, और उसके बाद जो उनके साथ एमबीए होते हैं, जो मार्केटिंग एक्सपर्ट होते हैं, उनके मुकाबले में वो कमज़ोर पड़ जाते हैं. तो दिस इज दैट्स व्हाई वी हैव पुट दिस सब्जेक्ट इन योर सिलेबस. ये डाला हमने इसीलिए था. 2004 के अंदर इसको HEC की टीम आई थी, उसके सामने मैंने प्रेजेंटेशन दी थी और उसमें इस सब्जेक्ट को ऐड करवाया था, जिसमें यहाँ के काफ़ी अच्छे बड़े बड़े लोग थे उस मीटिंग के अंदर. सो यू हैव सीन दैट द सेकंड प्रोडक्ट मैनेजर बिकम एक्सपर्ट इन देयर प्रोडक्ट बट रेयरली अचीव फंक्शनल एक्सपीरियंस, क्योंकि फंक्शनल एक्सपीरियंस के लिए उसको टाइम पीरियड चाहिए होता है. They vacillate between the posing of as an expert, अपने आप को शो करते हैं एक्सपर्ट है, मगर being a cowed by real expert, अगर एक एक्सपर्ट आए उसके सामने बिल्कुल बेकार हो जाता है. दिस इज अनफॉर्चुनेटली व्हेन द प्रोडक्ट डिपेंड ऑन स्पेसिफिक टाइप ऑफ द एक्सपर्टाइज सच एज अ एडवर्टाइजमेंट. अगर आप मिसाल के तौर पे एडवर्टाइजमेंट में आ जाइए, एक ब्रांड मैनेजर अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है. जब वो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है ब्रांड मैनेजर, तो ब्रांड मैनेजर को एडवर्टाइजमेंट का तो नहीं पता कि एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, क्योंकि एमबीए मैंने किया हो तो मुझे पता है एडवर्टाइजमेंट क्या होता है. मार्केटिंग मिक्स में जो एक प्रमोशन है, प्रमोशन यानी मार्केटिंग मिक्स के 7 P's हैं. 7 P में से एक P उठा लीजिए, वो है प्रमोशन. प्रमोशन के फिर आगे 4 मिक्स हैं, यानी प्रमोशन के भी 4 मिक्स होते हैं. एक होता है एडवर्टाइजमेंट, एक होता है पर्सनल सेलिंग, एक होता है सेल्फ पर्सनल रिलेशनशिप सॉरी, और दूसरा होता है डायरेक्ट मार्केटिंग. ये 4 जो मिक्स हैं, इसको समझना तो ये हर एक के नहीं समझ में आएगा. मैंने एमबीए किया तो समझ में आया, अगर मैं फार्मासिस्ट रहता तो मेरे समझ में नहीं आता कि एडवर्टाइजमेंट होती क्या चीज़ है. इसीलिए कॉटलर किताब और डेविड ए एकर की किताब ब्रांड मैनेजमेंट की कहती है कि एडवर्टाइजमेंट इज नथिंग बट इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग. कहते हैं एडवर्टाइजमेंट तो इतना छोटा है जैसे एक पहाड़ी का ऊपर वाला कोना है, क्योंकि नीचे और भी चीज़ें हैं. पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है ना, डायरेक्ट मार्केटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं नीचे. तो हमें इसको समझना है. इसको समझने के लिए बता रहे हैं कि ब्रांड मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर कंप्लीट एक्सपर्ट जब होगा जब वो उस प्रोफेशन के हिसाब से फंक्शनल एक्सपर्टीज हासिल कर लेगा. या तो हम टाइम लगा के हासिल करें या हम एजुकेशन लेके हासिल करें. मैंने एजुकेशन लेके हासिल कर ली, लोगों ने टाइम लगाया है, लोगों की पूरी पूरी जिंदगियां गुजर गई हैं. मेरे कितने मार्केटिंग मैनेजर थे जो सिंपल बीएससी थे, वो लोग सेल्स से शुरू हुए, उसके बाद बड़ी पोजीशन जाके मार्केटिंग. मैंने जब उनसे हम डिस्कशन में मीटिंग में बैठते थे तो वो क्या होता था कि वो उसका जवाब नहीं दे पाते थे और वो ब्लैंक हो जाते थे, इसलिए कि उनके बैकग्राउंड में एजुकेशन नहीं था, एक्सपीरियंस था. तो हमें ये भी देखना होगा कि उसके बैकग्राउंड में एक्सपीरियंस है या नहीं है. ठीक है, 10 मिनट आपके बच गए अभी. तो राइट जनाब, समझ में आ रही है बातें? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर. चले अब अगला जी सर. स्लाइड देखें और उसके बाद एक आध स्लाइड देके खत्म करेंगे. थर्ड, द प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफन टर्न आउट टू बी कॉस्टली. अब प्रोडक्ट मैनेजमेंट में प्रोडक्ट मैनेजर रखना बड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि जब मेरी ट्रैवलिंग होती थी और मैं अगर यहाँ से पेशावर जाता था तो 20,000 का तो सिर्फ जहाज का टिकट होता था, और 20,000 जो है होटल का खाना होता था, रहना और खाना. 40,000 तो ये निकल गए. बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 2009 की बात बता रहा हूँ. उस जमाने बल्कि इससे ज़्यादा खर्चा हो गया था. इसके अलावा जो खर्चे होते हैं तो मिला मिलू के 1 लाख का खर्चा होता था एक विजिट में. अगर मैं पेशावर जा रहा हूँ या इस्लामाबाद जा रहा हूँ या कोयटा जा रहा हूँ, कहीं पे भी जा रहा हूँ, तो तकरीबन 1 लाख रुपए का एक प्रोडक्ट मैनेजर पे एक विजिट पे खर्चा होता था. और मेरी जो ट्रैवलिंग होती थी 15-15 दिन कंटिन्यूस होती थी. तो आप सोचें कि कंपनी कितना पैसा खर्च करती है एक ब्रांड मैनेजर या प्रोडक्ट मैनेजर के ऊपर. तो ये एक्सपेंसिव पड़ता है. One person is appointed to manage each major product. Soon product manager are appointed to manage even minor product. Each product manager usually work lead for an associate brand manager. जब ये ब्रांड मैनेजर बन जाता है और जब उस बहुत मेहनत करता है तो फिर उसको क्या कर देते हैं, उससे
उसके बाद उसके साथ एक एसोसिएट ब्रांड मैनेजर लगा देते हैं। लेटर बोथ ओवरवर्क, दे परसुएड मैनेजमेंट टू गिव देम एन असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर। फिर उनको एक और मिल जाता है असिस्टेंट, यानी एक प्रोडक्ट मैनेजर के अंदर एक एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर आता है, एक असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर आता है। विथ ऑल दीज पीपल पेरोल कॉस्ट क्राइम्स। अब ये 3 आदमियों की तनख्वाह देना कंपनी के लिए मुश्किल हो जाता है। यह मुश्किल क्या होता है, मतलब उसके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है। आज का जो हमारे ज़माने का जो ब्रांड मैनेजर था वो तो बहुत कम पैसे लेता था, 25,000, 30,000, 40,000 पे चल जाता था। आज का ब्रांड मैनेजर लाख 1.5 लाख से नीचे लेते ही नहीं है, तो कंपनी हैज टू पे। फिर उसके साथ उसको गाड़ी देनी पड़ती है, क्योंकि उसको ट्रैवलिंग करनी होती है शहर के अंदर, डिफरेंट जगहों पे जाना होता है, मीटिंगें करनी होती है, सेमिनार, सिंपोजियम, राउंड टेबल मीटिंग्स, ये सारी चीज़ें उसका पार्ट एंड पार्सल है। इस तरीके से कॉस्ट बढ़ जाती है। लेटर बोथ ओवरवर्क, अच्छा ये तो हमने कर लिया। इन द मीन टाइम द कंपनी कंटिन्यू टू increase its functional specialists in copy, package, media, sales promotion, market survey and statistical analysis। अब इनको कंपनी क्या करती है, उनके जो एक्सपर्टीज को इम्प्रूव कराने के लिए उनको पैकेजिंग सिखाती है, उनको मीडिया का इस्तेमाल सिखाती है, उनको सेल्स प्रमोशन सिखाती है, उनको मार्केटिंग सर्वे सिखाती है, उसके बाद स्टैटिकल एनालिसिस भी सिखाती है। इस सब के लिए हर प्रोडक्ट मैनेजर की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का सिलसिला चलता रहता है पूरे जब तक वो जॉब करता है, क्योंकि यही प्रोडक्ट मैनेजर अब मूव करेगा आगे ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर में, और ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर मूव करेगा मार्केटिंग मैनेजर में, और मार्केटिंग मैनेजर मूव करेगा मार्केटिंग डायरेक्टर में, और मार्केटिंग डायरेक्टर मूव करेगा चीफ एग्जीक्यूटिव में। दिस इज द हाईएस्ट पोजीशन इन अ फार्मा इंडस्ट्री। जैसे नवाब असगर हुआ करते थे फाइजर में, ही वाज अ मेडिकल रैप एंड ही राइजेज एंड बिकम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द फाइजर। बिहार से उनका ताल्लुक था, तो वो वहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नवाब असगर के अलावा और भी बहुत सारे हैं जो लोग जिनके नाम है इस वक्त मार्केट के अंदर, जिसमें नजम साहब एक होते थे, वो मेडिकल रैप थे अर्गोनॉन के अंदर, और वो वहाँ से राइज करते करते मार्केटिंग डायरेक्टर फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी बने वो। तो लोगों ने राइज किया है। तो डिपेंड करता है कि कंपनी उनकी कितनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवा रही है, उनके अंदर फंक्शनल जो एबिलिटीज है वो कितनी एनहांस कर रही है। और ये मल्टीनेशनल्स और नेशनल्स दोनों करते हैं ये काम। इसके बाद हमारे पास है द कंपनी इज सून सॉलिडेटेड विद इन अ लार्ज एंड कॉस्टली स्ट्रक्चर, यानी कंपनी को इन तमाम काम करने की वजह से बहुत ही कॉस्ट आती है और वो बेयर करनी पड़ती है। फोर्थ, ब्रांड मैनेजर्स नॉर्मली मैनेज अ ब्रांड फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, either they make up in a few years to another brand or they transfer to another company। या तो ब्रांड मैनेजर उसी कंपनी में रहते हुए काम करता है, मैंने 7-8 कंपनियां चेंज की हैं, ठीक है, अपने कैरियर में मैं भी वहां से चेंज करता था। या आपको जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं उस प्रोडक्ट में आपको एक वक्त ये आया था कि मैंने एक साल में 27 प्रोडक्ट लॉन्च की थी, और एक वक्त ये था 1990s का कि डुपॉन्ट की 9 प्रोडक्ट मैंने लॉन्च की थी। ठीक है ना, तो बाज एक ज़माने में सन 1990 में तो 1-2 प्रोडक्ट लॉन्च करते थे बस कंपनी वाले हर साल, मगर उसके बाद 8-8, 9-9 प्रोडक्ट लॉन्च करने लगी कंपनीज। फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते तकरीबन तकरीबन आपके पास 27 प्रोडक्ट हमने एक वक्त में लॉन्च की थी एक साल के अंदर। तो प्रोडक्ट का लोड बढ़ता चला जाता है उस पर प्रोडक्ट मैनेजर पे। तो प्रोडक्ट मैनेजर क्या करता है, जो पिछली प्रोडक्ट होती है उसको मेच्योरिटी पे लाके छोड़ देता है, फिर कोई और उसको देखता है और खुद नए प्रोडक्ट पे काम करना शुरू कर देता है। या ये होता था हमारे साथ कि हम तो बेचारे अपनी प्रोडक्ट पे भी काम करते थे जो पुरानी होती थी, और नए प्रोडक्ट पे भी काम करते थे। आपको अच्छी सैलरी देना, अच्छी फैसिलिटीज देना, और आपकी लाइफ को इजी बनाना, कंफर्टेबल बनाना, ये तमाम चीज़ें जो कंपनी कर रही है, बहुत अच्छी तनख्वाह देना,
इसके साथ आपसे काम भी ऐसे ही लेती है। आज कोविड का ज़माना है, घर से बैठ के काम कर रहे हैं। आज मेरे भी घर से मेरी भी बेटी जो है वो गई हुई है उस फैक्ट्री, क्योंकि वो R&D मैनेजर, रिसर्च और डेवलपमेंट मैनेजर है। कुछ सैंपल्स लगा के आए थे, उसको जाके देखना है लैब में तो सैंपल्स के रिजल्ट क्या आ रहे हैं। तो जाना पड़ता है, घर में सब छोड़ के, बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है ना। गाड़ी है, गाड़ी के साथ ड्राइवर भी दे दिया कंपनी वालों ने, गाड़ी भी है, ड्राइवर भी है, ड्राइवर के गाड़ी के पेट्रोल भी देते हैं कंपनी वाले, ठीक है। ये सारी चीज़ें माशाल्लाह से मिलती है कंपनी में, जब आप भी जाएंगे आपको भी मिलेगी। मगर बात दरअसल ये यहाँ तक होगा कि आपकी फैमिली लाइफ खत्म हो जाएगी, बट कंपनी इज गिविंग मनी फॉर देयर ओन पर्पस। इन द सेम वे यू आर अर्निंग ऑल द मनी फॉर योर फैमिली। तो आपकी अपनी लाइफ जीरो हो जाएगी, फैमिली की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, हर चीज़ होगी घर के अंदर। ये तमाम चीज़ें इट्स अ पार्ट एंड पार्सल। तो इस तरीके से हमने आज का जो टॉपिक था हमारा, इस टॉपिक में हमने देखा एक ब्रांड मैनेजर या प्रोडक्ट मैनेजर के क्या रोल है। एक छोटा सा और देख ले, पियर्सन एंड विल्सन्स हैव सजेस्टेड 5 स्टेप्स टू मेक द प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम वर्क बेटर। आप अगर प्रोडक्ट मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो 5 पॉइंट आप नोट कर लिए। क्लियरली delineate the limits of the product manager role and responsibility। सबसे पहले तो आप एक प्रोडक्ट मैनेजर या ब्रांड मैनेजर की लिमिटेशन बता दें कि वो कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपके जॉब जब आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जब भी आप नौकरी में जाएंगे तो एक आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, एक कागज़ दिया जाएगा जिसमें जॉब लिखा हुआ होगा, क्या क्या करना है आपने। तो उसमें देख ले कि वो काम आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो स्टेट अगर मना कर दीजिए कि सर ये मेरे डोमेन में नहीं आता, ये मैं काम नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप खामोश रहेंगे तो काम आपको सारी जिंदगी और कंपनी में करना पड़ेगा। बिल्ड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट एंड रिव्यू प्रोसेस टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द प्रोडक्ट मैनेजर ऑपरेशन। आप एक स्ट्रेटेजी डेवलप कीजिए और प्रोडक्ट को रिव्यू कीजिए और एक फ्रेमवर्क बनाइए कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑपरेशन कैसे करेंगे। ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है टेक इनटू अकाउंट एरिया ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द प्रोडक्ट मैनेजर एंड द फंक्शनल स्पेशलिस्ट व्हेन डिफाइनिंग देयर रेस्पेक्टिव रोल। अब आपका जो रोल दिया है एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, वो और जो ऊपर आपके मैनेजर मार्केटिंग बैठा हुआ है, वो आपके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट आएगा।